Dear students, welcome again. This is the 8th lecture on business ethics and corporate social responsibilities. Before this, in the 7th lecture, we discussed the case of Ford Motors. And if you remember that, we were discussing the model of a car. The name was Pinto, and it has the fault of gas cylinder or gas tank, and it was the prediction that if the tank design will be stay at same, the chances of injuries and deaths and other losses can be increased. However, after cost and benefit analysis, the managers of Ford Motors decided to carry on the current design of the gas tank, and Pinto was manufactured. Many people were died, around 60, and several persons were found injured. But all of that, Pinto was sold out after 1980s. Now, the concept to understand here is why unethically the management of Ford Motors decided to carry on the current gas cylinder design. Actually, the argument was not this, because the management was interested in 87 million US dollars benefits. Actually, the argument was the current design is benefited for the whole society. In general, the people paying cost is not much. The economic cost will be high, and the people in general cannot afford it. And all legal precautions will be taken and were taken into consideration while manufacturing the gasoline tank. So all internal satisfaction forced them to carry on the current gasoline design. And it was, in general perspective, it was a utilitarianism. Now we are going to learn today what is utilitarianism. By understanding the term of utilitarianism, we will be able to understand the concept of utilitarianism and the case of Ford Motors, the Pinto car, more clearly. What is utilitarianism? A general term for any view that holds that actions and policies should be evaluated on the basis of the benefits and costs they will impose on society. So, the cost and benefit will impose on society is the most important concept with reference to utilitarianism. Utilitarianism, what is the utilitarianism? In simple words, ये actions और policies होती हैं जिनको evaluate किया जाता है कि आया कि इनको अडॉप्ट करने से या ये एक्शन लेने से कितना फ़ायदा होता है और कितना नुकसान होता है ओवरऑल सोसाइटी को, not the individuals persons. So यूटिलिटेरियनिज्म जो कंसेप्ट है वो ओवरऑल सोसाइटी को देखता है, किसी इंडिविजुअल कार खरीदने वाले को या कार बेचने वाले को नहीं देखता, किसी कस्टमर को नहीं देखता, सोसाइटी को देखता है. द सेम केस विद द फोर्ड मोटर्स, द पिंटो कार. जो मैनेजमेंट थी, जो इंजीनियर्स थे, जो कास्ट एनालिसिस थे, उन्होंने जो देखा वो देखा कि ओवरऑल सोसाइटी को हम सस्ती कार दे सकें, एक अच्छी कानूनी तौर पे तमाम चीज़ें पूरी और एक अच्छी कार दे सकें. इस पर्सपेक्टिव में उन्होंने सोचा और उन्होंने वो जो गैस सिलेंडर का डिज़ाइन था उसको चेंज नहीं किया और इवेंचुअली दे फेस द कैजुअलिटीज एज वेल. दैट इज अनदर स्टोरी.
but the concept was to protect the society from the economic pressure from the high cost of the car, because there were the chances to increase the cost of the car if they manufactured with a different design. So this is the concept of utilitarianism. Again, I repeat it. Utilitarianism क्या है? Actions and policies जो कि हम परखते हैं, वैल्यूएट करते हैं, मेजर करते हैं इस बेस के ऊपर कि इन एक्शंस और पॉलिसीज के बेनिफिट्स और कॉस्ट किस तरीके से सोसाइटी पे असरअंदाज होती है। अगर तो बेनिफिट्स ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि हम हाईली यूटिलिटेरियनिज्म की तरफ चले गए हैं। अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि हमने जो है वो ज़्यादा अच्छा डिसीजन नहीं लिया, लिहाजा हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स की तरफ जाना होता है बाय अडॉप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। अब फर्दर इसको एक्सप्लेन करने के लिए, फर्दर समझने के लिए हम आ जाते हैं व्हाट इज द यूटिलिटी। द इंक्लूसिव टर्म यूज्ड टू रेफर टू एनी नेट बेनिफिट्स प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्शन। कोई भी नेट बेनिफिट, जब भी हम कोई काम करते हैं उसका नेट प्रॉफिट जो होता है उसे हम कहते हैं यूटिलिटी, जो हमें फ़ायदा पहुंचता है कोई भी काम करने से, कोई भी एक्शन लेने से, कोई पॉलिसी अडॉप्ट करने से, तो हम कहते हैं ये हमारी इतने % यूटिलिटी है, ये इतनी हमारी इस काम में यूटिलिटी है या इसका फ़ायदा है, बेनिफिट। सो दीज आर द टू concepts, utilitarianism and utility. Now we further understand the different principles of utilitarianism. What are the key benefits, what are the key principles of utilitarianism when we are checking whether the theory of utilitarianism is applying or not? What is the traditional utilitarianism? An action is right from an ethical point of view if and only if the sum total of utilities produced by that act is greater than the sum total of utilities produced by any other act the agent could have performed in its place. Simple words में कि यूटिलिटेरिज्म, ट्रेडिशनल यूटिलिटेरियनिज्म क्या है कि कोई भी एक्शन उस वक्त तक हम सही तस्वर करते हैं एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब उसके टोटल बेनिफिट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हों कोई भी काम करने के, कि अगर उसके मुतबादिल कोई और तरीका अडॉप्ट किया जाए तो इतना बेनिफिट ना हो, उसे हम कहेंगे कि ये हाईली यूटिलिटेरियनिज्म कंसेप्ट हमने अडॉप्ट किया है, यूटिलिटी हमने मैक्सिमम जो है वो हासिल की है। अगर एजेंट जो है वो ऐसा वे ऑफ एक्शन अडॉप्ट करता है जिसके अंदर हमें यूटिलिटी कम मिलती है और दूसरे तरीके से ज़्यादा मिल सकती थी, तो इसका मतलब है हम यूटिलिटी पूरी तरह से अर्न नहीं कर सके, हम यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर काबू नहीं पा सके। इसकी मिसाल यूँ भी ले लेंगे, अगर किसी बंदे को भूख लगी हो और वो अपनी भूख मिटाने के लिए खाना खाना चाहता है, तो अगर उसे हम सिर्फ दूध दे दें, सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए, तो दूध भी उसकी भूख मिटा देगा। लेकिन अगर उसके मुकाबले में उसको एक खाना मुकम्मल मील देंगे तो उससे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से फ़ायदा हासिल कर सकता है। तो यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा वो मुकम्मल मील में होगा, दूध में नहीं, क्योंकि दूध में भी यूटिलिटी है बट नॉट द मैक्सिमम यूटिलिटी। लिहाजा कोई भी वे ऑफ एक्शन सोसाइटी में जिससे मैक्सिमम फ़ायदा हो सकता हो और कोई भी और मुतबादिल तरीके से फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करें तो इतना फ़ायदा ना हो, तो हम कहते हैं कि दिस इज द यूटिलिटेरियनिज्म कंसेप्ट अडॉप्टेड। उसके बाद इसके कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो यूटिलिटेरियनिज्म के हवाले से, दिस इज रीडिंग फॉर योर गाइस। हम आते हैं आगे इसके प्रिंसिपल्स के ऊपर। यूटिलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल्स क्या हैं? दे आर द 5 मेन प्रिंसिपल्स। नंबर 1, utilitarianism, as we discussed, advocates maximum utility. हम उस वक्त ही यूटिलिटेरियनिज्म के कंसेप्ट के अंदर पूरा उतरते हैं जब हम मैक्सिमम फ़ायदा हासिल करते हैं। जैसे कि अभी आपको मैंने एग्जांपल दी खाने के हवाले से कि अगर वो मील मिले जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सके, मैक्सिमम यूटिलिटी फील हो सके, दैट इज़ अ यूटिलिटेरियनिज्म। अगर वैसे भूख मिटाने के लिए आप दूध पी लें, आप कोई रस खाएं, इस तरह का काम करें, तो दैट इज़ आल्सो अ यूटिलिटी बट नॉट द मैक्सिमम यूटिलिटी। Number 1.
नंबर 2, मैचेस वेल विद मॉरल वैल्यूज ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। अब जो पब्लिक पॉलिसीज हैं वो आपने देखी होगी, जब भी गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाती है, जब भी कोई एक्शन करती है, तो वो पब्लिक के वसी तर मफाद में होता है, मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए होता है। कोई पब्लिक का काम ऐसा जो गवर्नमेंट करती है वो ऐसा नहीं होता है कि कुछ मखसूस लोगों को फायदा और ज़्यादा लोगों को नुकसान हो। लिहाजा उसी तरह से जो भी हम काम करें बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसा काम जिसका इम्पैक्ट अनएथिकल हो, पब्लिक पॉलिसी के साथ मिस मैच हो जाए, या जब सोसाइटी डिस्टर्ब हो, तो वो भी चीज़ जो है वो यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर नहीं आती। अलबत्ता यूटिलिटेरियनिज्म के जितने एक्शन और पॉलिसीज होती हैं मैचेस वेल विद मॉरल इवैल्यूएशंस ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, यानी कि जितनी भी पब्लिक पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, आपके वे ऑफ एक्शंस को सपोर्ट करती हैं। जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, डेंजरस फॉर द सोसाइटी। अगर कोई भी एक्शन ऐसा लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जिससे पोल्यूशन कम होती है या कंट्रोल होती है या मिनिमम होती है, तो दैट इज अ यूटिलिटेरियनिज्म फॉर द ओवरऑल सोसाइटी, और उसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन को डेफिनेटली कोई फायदा भी पहुंचता है। appears intuitive to many people। इंट्यूटिव मैनी का मतलब है कि जनरल पब्लिक की परसेप्शन या सिक्स्थ सेंस, कि आम लोगों को वो वे ऑफ एक्शन या आपकी वो पॉलिसी जो है वो अपील करें, उनको पसंद हो और वो उसको लाइक करें कि ये बिल्कुल सही बात है, ये अंडरस्टैंडेबल है, इसका फ़ायदा है, तो वो हम कहेंगे कि ये दिस इज एप्लीकेशन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। हेल्प एक्सप्लेन व्हाई सम एक्शंस आर जनरली रॉन्ग एंड अदर्स आर जनरली राइट। अब आप जो भी वे ऑफ एक्शन लेंगे, जो भी काम करेंगे, कुछ हमारे ऐसे जनरली कंसेप्ट्स होते हैं, जनरली वे ऑफ एक्शन होते हैं जो रॉन्ग होते हैं, जैसे कि किलिंग है, लाइंग है, रॉबरी है, दीज आर द डेंजरस फॉर द सोसाइटी। अगर हम झूठ बोलना शुरू करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसको वे ऑफ एक्शन अपना बनाएंगे, बिजनेस प्रैक्टिस में अडॉप्ट करेंगे, तो डेफिनेटली द ट्रस्ट बिटवीन द पीपल विल बी डिसअपियर एंड वी विल। अब अगर जनरल लोग आपस में झूठ बोलना शुरू कर देंगे, बिजनेसमैन झूठ बोलना शुरू कर देंगे, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? लेवल ऑफ ट्रस्ट विल बी डिक्रीज्ड बिटवीन द बिजनेस पीपल, अमंग द बिजनेस पीपल, एंड द actions will destroy the business. The people will not rely on each other. They will adopt the different guarantees, and it will affect the eventually the business. लिहाजा यूटिलिटरिज्म का मैक्सिमम जो हम बेनिफिट कहते हैं या लेते हैं, उसका लिए ज़रूरी है कि वो वे ऑफ एक्शन जो जनरल सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है उनसे अवॉइड किया जाए, और वो वे ऑफ एक्शन जिनको जनरल सोसाइटी में पसंद किया जाता है उनको अडॉप्ट किया जाए, देन वी विल बी एबल टू गेट द बेनिफिट। क्योंकि हम आम तौर पे समझते हैं कि डिसऑनेस्टी जो है वो कारोबार को तबाह कर देती है, आपका लॉन्ग टर्म में बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लास्ट जो प्रिंसिपल है, जो लास्ट इंग्रेडिएंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है यूटिलिटेरियनिज्म का, वो है यूटिलिटेरियनिज्म आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द इकोनॉमिक्स। ज़ाहिर है लोग अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं, और बहुत सारी जगहों पे लोग अपना फ़ायदा उठाने के लिए कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, और उस कॉम्प्रोमाइज़ की सूरत में कई दफ़ा हम वे ऑफ एक्शन जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट वाला नहीं उठा सकते या उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते, जिसका इम्पैक्ट होता है। इसलिए इकोनॉमिस्ट सेड दैट beginning in the 19th century argued that economic behaviors could be explained by assuming that human beings always attempt to maximize their utility, and that the utilities of commodities can be measured by the prices people are willing to pay for them। लिहाजा यूटिलिटेरिज्म का कंसेप्ट जो है वो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में भी देखा जा सकता है कि जब आप चीज़ें खरीदते हैं और आप कहते हैं हमें मैक्सिमम फ़ायदा हुआ है, तो वो किस सूरत में होता है कि जब आप अच्छी चीज़ सस्ती प्राइस पे ले लेते हैं। तो ये अच्छी चीज़ सस्ती प्राइस पे लेना, दैट इज इकोनॉमिक्स। लिहाजा इकोनॉमिक्स की भी इन्वॉल्वमेंट है यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर, कि जब भी आप मैक्सिमम फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं बाय शॉपिंग द प्रोडक्ट्स, बाय इन्वेस्टिंग समथिंग और लाइक दैट, तो आप मैक्सिमम फ़ायदा देखते हैं प्राइस के
हिसाब से, और अगर प्राइस कम हो, चीज़ अच्छी हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, हम कहते हैं हम यूटिलिटेरियनिज्म को फॉलो कर सकते हैं। लिहाजा अभी तक हमने जो समझा है, द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म क्या है कि ऐसी पॉलिसीज और एक्शंस जिनकी वजह से हम ऐसा बेनिफिट उठा सकें जो कि किसी और तरीके से, किसी और एंगल से हम नहीं उठा सकते। जैसे कि मैंने आपको खाने की मिसाल दी ताकि आपको अंडरस्टैंड हो। और उसके बाद हमने इसके 5 करेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स डिस्कस किए, जिनमें नंबर 1 जो है वो है advocates maximizing utility, matches well with moral valuations of public policies, appears intuitive to many people, helps explain why some actions are generally wrong and other are generally right, influenced economics. उसके बाद एक और कंसेप्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट, पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यूटिलिटेरियनिज्म with reference to cost benefit analysis, a type of analysis used to determine the desirability of investing in a project by calculating whether its present and future economic benefits outweigh its present and future economic costs. लिहाजा कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाने की कोशिश करते हैं, कोई मकान बनाते हैं, कोई शेयर्स खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम यही देखते हैं कि आज जो हम बेनिफिट्स देख रहे हैं और जो प्रेजेंट में हम कास्ट देख रहे हैं और फ्यूचर की कास्ट देख रहे हैं, क्या इनके हिसाब से हमें कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा। ये बिल्कुल एग्जांपल वही है जो पिंटो कार के अंदर फोर्ड मोटर्स ने कैलकुलेट की थी कि अगर हम डिज़ाइन बदलते हैं तो आज ये कास्ट आएगी, कितना प्रॉफिट होगा, अगर नहीं बदलते तो ये कास्ट आएगी और हमें इतना बेनिफिट हो सकता है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कास्ट बेनिफिट एनालिसिस। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं एक और कंसेप्ट के ऊपर, एफिशिएंसी। ये वर्ड आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी पढ़ा है। व्हाट इज एफिशिएंसी? प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम प्रोडक्ट्स विद द लोएस्ट रिसोर्सेज। जब आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें लोएस्ट रिसोर्सेज के साथ, या डिजायरेबल आउटपुट विद द लोएस्ट रिसोर्सेज इनपुट के साथ, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का भी डायरेक्ट तल्लुक है द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, कि अगर आप अपने एक्शंस और पॉलिसी के साथ मैक्सिमम यानी एफिशिएंटली बेनिफिट नहीं उठा सकते, थोड़े रिसोर्सेज से ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकते, इट मीन्स वी आर नॉट 100% फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म और द थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। लिहाजा एफिशिएंसी जो है वो भी एक अहम पार्ट है हमारा यूटिलिटेरियनिज्म के हवाले से। उसके बाद हम आते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म को मेजर करने में डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं, और उनको हम कैसे मेजर करते हैं ये हम अगले लेक्चर में जो है 1 by 1 समझेंगे, और इनका फिर आगे देखेंगे हाउ वी कैन अवॉइड दीज प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द इश्यूज विद दीज प्रॉब्लम्स। प्लीज रीड द chapter carefully, note down the notes and be ready for the assignment. Thank you.